Okay, so before I jump into the content for this session, I want to bring this to your notice, to notice of all present here, that this session had almost been called off. We were canceling the session, and the reason was कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रही आज. I was not feeling well. I was completely unwell. I still am. But then I thought I would just share this with my audience and they will be considered enough to understand, right? So here I am with not being fit enough to conduct this session, but I'm doing it anyway since it was scheduled, since it was a commitment done, and since it is my responsibility. I didn't want to convey any bad or wrong impression since a lot of effort has been gone into arranging this boot camp. So I say aloud, a lot of effort has been gone into it. Um, Past 24 hours, and I did manage to sleep only for 2 hours, plus the content took a lot of time. Now, what is the objective of After-Iftar ML? So the objective of the bootcamp is to give you a start into machine learning. Objective of this session, what is objective of this session, which we are conducting right now, is to inform you of all some basic terms and things related to ML. It's not going to be very much detail. And since I did mention that I'm not feeling myself and I'm a little unwell, तो हम कोशिश करेंगे काइंडली अब्दुल्ला अपनी माइक अगर आप म्यूट कर दें तो हम कोशिश करेंगे कि we keep the session short since it is the first session तो इतनी डिटेल्स नहीं होंगी hands on भी नहीं है इसमें we will start slowly and then we will build upon that ठीक है जो second और third session होगा तो उसमें फिर since है तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है टू गिव यू अ स्टार्ट इनटू एमएल तो उसमें जो हैंड्स ऑन होगा वो मीनिंगफुल होगा और वो ऐसे होगा कि आप अगर बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर भी है तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई विल बी delivering my content. So this is all. Now I guess I should present my screen and content. Anybody please confirm me that my slides are visible. Yes, Is it actually. visible? Okay. So sessions discussion. Now outline of the topics it's been already shared with you all. आपके साथ पहले भी ये शेयर हुआ है कि आज जो हमारा कवर करने का है वो that is history of ML, basic concepts है, ML problem framing, types of ML, machine learning life cycle, machine learning versus data science इसमें मैंने include किया है कि they are interlinked intersection area है, career in ML sorry, career paths in machine learning. तो उस पर भी मैंने briefly बात की है और important is के task भी है इसमें और if anybody want to avail the bootcamp completion certificate तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है एक वो एक फीडबैक फॉर्म होगा वो फिल करना और एक ये टास्क करना जरूरी होगा और देयर आर सम इंसेंटिव्स promised as well जो कि शेयर हुई है तो वो based upon the task how it is being done तो उसके बेस पर randomly भी किसी इंटरेक्शन पर वो इंसेंटिव अवार्ड हो सकती है. Now coming to ML, so the very basic definition and probably even the one who are just beginning into ML would have heard of is the field of study that gives computer the ability to learn without explicitly being programmed. तो यहाँ पर word use हुआ है explicitly. The traditional programming is that we tell the compiler to perform a task and the compiler in a result do the task. ठीक है लेकिन machine learning में ऐसा खास क्या है कि when we bring machine learning into the scene तो होता क्या है कि हमारे algo ऐसे डिजाइन होते हैं कि उसमें वो ऑटो वाला होता है कि वो खुद वो काम करता है उसके लिए हमने अल्गो जो हम
जो प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं वो हम नहीं लिखते, बल्कि डेटा होता है, और डेटा से जो हमारा मशीन होता है, यूजिंग दैट पर्टिकुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वो उससे पैटर्न को लर्न करता है। इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, फिर जो और भी इसकी टाइप्स है, तो हर एक में चेंजेस आ जाती है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू रहती है थ्रू आउट, के इट वी डू नॉट नीड टू प्रोग्राम इट एक्सप्लिसिटली फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, बल्कि मशीन लर्निंग में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जनरलाइजेशन का, कि हम अपने एल्गो को ऐसा ट्रेन करते हैं कि एक अनसीन डेटा सेट या अनसीन सरकमस्टांस रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम जब हम उस मशीन को प्रोवाइड करते हैं, तो उस वो हमें उसका आंसर और प्रिडिक्शन भी देता है। तो वो जो प्रिडिक्शन हमें फिर मिलती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे मशीन की आउटपुट होती है, जो कि फिर मशीन लर्निंग होती है, क्योंकि उसके लिए हमने प्री डिफाइंड स्टेप्स नहीं किए होते हैं कि आप अगर ये डेटा आ जाए तो आपने मुझे ये आपका फिर एज ए रिजल्ट आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, वो नहीं होता। तो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। So that is why this is the most simple definition of ML. That is the field of study that gives computers the ability. It enables the computer to learn from data if we add to it without explicitly being programmed for a particular task. So you can add up to this definition based upon your concepts. Now, um, if I talk about history of machine learning, right? I think this would be dull if I do not, I will just talk and I'm not visible to you guys. So the interaction should be there. Anyway, now let's get back to my slides. And I usually include the history part in my presentations everywhere. And reason stays कि मैं खुद समझता हूँ कि हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए, so that we know कि कहाँ तक काम हो चुका है, कहाँ पर काम करना है। तो if anybody is interested in research, तो उसके लिए तो लिटरेचर रिव्यू और ये बैकग्राउंड स्टडी और इस तरह की हिस्ट्री से अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो हाउ वुड यू गो अहेड, आप आगे कैसे जाएंगे? अब प्लीज आप अपने माइक म्यूट रखें, सो दैट कोई डिस्टरबेंस ना आए। अच्छा, तो हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, और मैंने ब्रीफली यहाँ पर ये हिस्ट्री को ऐड किया है। इफ़ एनीबडी, फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन जिसको हिस्ट्री का नहीं पता, तो दिस डज नॉट मीन कि वो एमएल इंजीनियर नहीं बन सकता या उसको एमएल नहीं आ सकती। लेकिन मैंने आपको पॉइंट दे दिया कि अगर आपने खुद से कुछ कुछ करना है, या आप वो डिग्री आप आगे जाना चाहते हैं इन दैट लेडर ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो इट इट इज़ मेनली डेटेड बैक टू 1950। उससे पहले भी काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1950 से वी कैन have the documented history, which is Alan Turing proposed the question, can machine think? Alan Turing was the first guy who proposed, wrote a paper, and in that paper he proposed this phrase, can machines think? और उसी के साथ उसने ट्यूरिंग टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया। ट्यूरिंग टेस्ट में यह होता है कि ही प्रपोज्ड के 3 टर्मिनल्स होते हैं इस टेस्ट के, अगर मैं ब्रीफली बताऊं आपको। और एक टर्मिनल जो है वो क्वेश्चन पूछता है 2 टर्मिनल से। उन 2 टर्मिनल्स में एक कंप्यूटर होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। और इस जो ये मिडल में टर्मिनल है, इसको ये असेस करना है कि कौन सा रिस्पॉन्स मशीन जनरेटेड है और कौन सा ह्यूमन बीइंग जनरेटेड है। तो अगर वो फर्क नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स के अब प्रॉपर वो प्रोसीजर इज फॉलोड, और उसके बाद वो फर्क नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स के ट्यूरिंग टेस्ट इज बीइंग पास्ड बाय दैट मशीन। तो ये तो एक सिंपल टेस्ट है, और टेस्ट भी है जो कि एकेडेमिया और जो रिसर्च में यूज होते हैं। लेकिन one of the test is Turing test. Or in 1950, Alan Turing proposed the question, can machines think, which paved the way for development of machine learning. इस तरह जो मैंने पिछले स्लाइड में डेफिनेशन की बात की, तो that definition is
usually connected to author Samuel, जो कि कहा जाता है कि he coined the term machine learning, और उनकी अपनी contribution है फिर ML in AI, ठीक है, one of the pioneers in AI. So then after 1950, we can jump to 1957 when the first perceptron model was presented. So in 1950, Frank designed the first neural network. That was the first neural network जो कि बहुत simple था, ठीक है, लेकिन एक neural network जो है वो पहली बार developed हुआ, ठीक है, और इसको perceptron model कहते हैं, which is जब जो कोई भी deep learning pursue करता है तो वो इसको जरूर देखता है और उसको पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज द परसेप्ट्रॉन मॉडल और इसकी मैकेनिज्म क्या है. वी नॉट गोइंग इनटू डिटेल बट जस्ट एडिंग इट इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री व्हिच इज बिकॉज इट इज अ माइलस्टोन राइट इन when we are studying about machine learning or when we are referring to the history of machine learning. Now, 1959, Adeline and Madeline neural networks, दो और networks बने, neural networks जिनका अपना specialized काम था. एक binary patterns को recognize करने में काम आता था, दूसरा phone line से echo को खत्म और eliminate करने के लिए use हो सकता था. तो ये जो second है तो इसका तो बिल्कुल practical word इसकी application थी कि phone line से echo को eliminate करने के लिए वो neural network could be used, could be employed, ठीक है. तो 1959 में ये था. फिर 1967 में नियरेस्ट नेबर अल्गो आया, जो कि हम अपने सेकंड सेशन में हैंड जोन का पार्ट इसको आई एम थिंकिंग टू इंक्लूड इट इन द हैंड जोन. तो ये एल्गोरिदम आया, ये कैसे काम करता है, वी विल लुक इनटू डिटेल. सुपरवाइज लर्निंग अल्गो है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकता है विद with some modification, could be used for regression. Classification क्या है, regression क्या है. Again, if I assume के this is designed for absolute beginners, so I will be talking on classification and regression. And if somebody in my participants are from that intermediate level, they would know already, और उनको काफी पता होगा. लेकिन again, जैसे मैंने अगर बात की कि इसका objective है to enable you to start into ML, तो उस context से चीजें would be will be from the beginning and from the very ground up, ठीक है. Now in 1981 explanation based learning का concept propose किया, ठीक है, डी जोंग ने, और इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है. दिस वाज जस्ट पैराडाइम इन एमएल, वी कैन से कि नॉलेज बेस को इंक्लूड करके एक प्रॉब्लम को अप्रोच किया गया था. नॉट गोइंग इनटू डिटेल अगेन. नाउ 1990 शिफ्ट टू डेटा ड्रिवन अप्रोच. ये बहुत जरूरी है कि 1990s was the era when data driven approach was like it took the speed. कि 1990 machine learning shifted from knowledge driven to data driven. पहले था कि अगर data ना भी हो, how can we enable the machine to solve the problem or to do the task. लेकिन फिर ऐसे algos develop होना start हुए जो कि डेटा हंग्री है, जो कि डेटा उनको रिक्वायर होता है और उन डेटा से वो पैटर्न लर्न करते हैं, ठीक है. सो द शिफ्ट बीइंग मेड देयर 1990s का ये टाइम था कि जब हम डेटा ड्रिवन से नॉलेज ड्रिवन से डेटा ड्रिवन अप्रोच में हमने जंप किया, ठीक है. In 2002, IBM Watson Jeopardy गेम है. IBM Watson का मशीन है जो कि उसने Jeopardy में ह्यूमन बींग्स को हराया. So in 2002, IBM Watson defeated two Jeopardy world champions using neural language processing, machine learning, and information retrieval techniques. तो इन सब को मिलाकर the machine was able enough के वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ जेपर्डी को उन्होंने डिफीट किया. ये ऐसे है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये सुन रहा है तो द पर्सन कुड सर्च ऑन इट और उसको और भी डिटेल मिल सकती है which is interesting. और जैसे मैंने हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस में बात की, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वन कैन लुक इनटू these points. फिर इन 2016 अल्फागो जो गूगल की तरफ से था, उसने डिफीट किया ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन इन द गो गेम व्हिच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम. तो इसने आई गेस 2 times डिफीट किया है. इन
In 2016, Google's AlphaGo program defeated a professional human world champion using machine learning and research techniques. तो ये हुआ. Now, if we talk about the current age, तो हमें पता है generative AI किस तरह हाइप पे हैं. माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, चैट जीपीटी 4 और इनकी फिर पार्टनरशिप, और इस तरह फिर गूगल के अपने वेंचर्स और बार्ड और मेटा अपना अभी सेगमेंट एनीथिंग मॉडल एक उन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली, और भी सिमिलर टू चैट जीपीटी स्टफ वो लगे होते हैं. कुछ जो है वो पब्लिक होती है इनकी जो काम होते हैं, और कुछ पब्लिक नहीं होते. अमेजोन, एनवीडिया, ये सब कंपनीज ऐसी है जो कि मशीन लर्निंग में बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है, और ये दे आर वेंचरिंग इनटू एमएल एक्टिवली. और दीज आर द कंपनीज जो कि बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं. और हमारे पास हर नया दिन कोई नई न्यूज़ होती है रिलेटेड टू एआई एंड एमएल. So, as I have written here, several companies, including Google, Amazon, OpenAI, Microsoft, and Facebook, are investing in machine learning to develop innovative products and services. और काफी उन्होंने बना चुके हैं वो, और बना रहे हैं. So, this was about the history of ML. Now, when we talk about the basic concepts of machine learning, तो मैं इतना डिटेल में नहीं गया हूँ. मैंने एक चार्ट सा बनाया है जिसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैंने इंक्लूड किया है कि एज वी सेड के नॉलेज ड्रिवन से चीज़ें वो डेटा ड्रिवन में आई है. तो डेटा के साथ हमारा डेटा के साथ वास्ता है, ठीक है, व्हेन वी आर इन मशीन लर्निंग. फिर ट्रेनिंग डेटा होती है, टेस्टिंग डेटा, मॉडल, फीचर, लेबल, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, एक्यूरेसी, इन सब का हमें पता होना चाहिए. ये तो कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू एमएल. बट दिस इज आई हैव इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ये वो बेसिक है कि जैसे हमने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि एमएल में हमें डेटा की जरूरत है. हम जो अल्गो यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट ही होती है गुड डेटा. जितना डेटा अच्छा होगा, या पहले डेटा का होना, फिर डेटा का अच्छा होना, और फिर डेटा का अच्छा कैसे होना होता है, वो सब इस पार्ट ऑफ एमएल. ठीक है, एमएल के लाइफ साइकिल में है वो. ट्रेनिंग डेटा ये होता है कि आप किस मॉडल पर अपने उस मशीन को ट्रेन करते हैं, ठीक है. और फिर टेस्टिंग डेटा ये होता है कि आप ये जो यहाँ पर एक्यूरेसी है, तो वो एक्यूरेसी आप कैसे फाइंड करते हैं. आप टेस्टिंग डेटा उसको देते हैं, वो आपको आउटपुट देता है. अभी आपने अपना मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय नहीं किया, आप टेस्टिंग डेटा को लेकर उस पर प्रिडिक्ट, जो मशीन लर्निंग आपको प्रिडिक्शन देती है, उस टेस्टिंग डेटा के जो करेक्ट आंसर्स होते हैं वो भी आपके पास होते हैं, और आपको पता चल जाता है कि हाउ एक्यूरेटली द मॉडल इज परफॉर्मिंग. और फिर कॉन्सेप्ट्स होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है अगर हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी की बात करें. तो थ्रू ऑल दोज थिंग्स हम फिर क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि कितना एक्यूरेट हमारा मॉडल काम कर रहा है. लेकिन ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, यूजुअली जो डेटा होता है हमारा, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं. डेटा वो डेटा होता है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइज लर्निंग, जो कि हम डिटेल में इसमें जाएंगे. अगर अभी आप मुझे फॉलो 100% नहीं भी कर रहे हैं, इज टोटली फाइन. दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग. लर्निंग हैज नेवर बीन कन्वीनियंट. आप जब कोई चीज अगर पहली बार सीख रहे हैं, तो हम व्हेन वी आर इन क्लासरूम्स, तो हमें अगर 40 to 50 or 60 to 70% बी वी आर फॉलोइंग अवर इंस्ट्रक्टर, could work for us, क्योंकि आपको वो चीज खुद पे देखनी पड़ती है. You cannot assume कि by listening to an instructor or a trainer you're going to master the art or the skill. ठीक है, तो सिर्फ आपके जहन में वो बात होती है, फिर जब आप उसको खुद देखते हैं तो तब वो रीइंफोर्स होके आपका वो स्किल डेवलप होना स्टार्ट होता है. जो मैं लास्ट में बात करूंगा इन द स्किल एक्विजिशन पर, इफ आई डू नॉट फॉरगेट. तो डेटा को हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देते हैं. फिर जो हमारा मॉडल होता है ये वो अल्गो होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना ट्रेनिंग डेटा देते हैं, ट्रेन हो जाता है मॉडल. फिर हम उसको टेस्टिंग डेटा देते हैं, हम उसकी एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, और भी इवेल्युएशन मैट्रिक्स होती है, F1 स्कोर, रिकॉल, जो कि या इस टाइम के लिए एडवांस चीजें हैं. फिर फीचर क्या होता है, लेबल क्या होती है. तो फीचर इज दैट
पैरामीटर जो कि आप अपने मॉडल को दे रहे हैं कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, या अगर आप टेबल की फॉर्म में अपने डेटा को इमेजिन करें, विजुलाइज करें, तो जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स में वो जो आप ऐसा कह लें कि उन कॉलम्स में जो इंफॉर्मेशन है, हर एक कॉलम में वो एक-एक फीचर है, ठीक है? तो वो फीचर्स और फिर लेबल का इससे क्या रिलेशन है कि लेबल उसका आउटकम है, ठीक है? मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, आई हैव ओपन अ जुपिटर फाइल जो कि वी देन मैं रेफर टू टुमारो सेशन इन डिटेल, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिर्फ ये डेटा फ्रेम दिखा रहा हूँ कि ये सीपल लेंथ, सीपल विड्थ, पीटल लेंथ, पीटल विड्थ, ये आइरिस डेटा सेट है, अ फेमस डेटा सेट इन scikit-learn। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास। एक फीचर हमारे पास सीपल लेंथ है, एक फीचर सीपल विड्थ है, एक पीटल लेंथ है, एक पीटल विड्थ है। 4 फीचर्स है और फिर इसके अगेंस्ट हमारे पास लेबल होते हैं। मतलब अगर हमारे पास लेंथ ये हो, विड्थ ये हो, पीटल लेंथ ये हो, पीटल विड्थ ये हो, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम है, जो आंसर है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो आंसर है, वो क्या है? तो वो या हमारे पास ये सेटोसा हो गया, वर्सिकलर, वर्जिनिका, तो ये फिर हमारे पास 3 लेबल्स हैं कि ये इसका आंसर, आउट ऑफ दिस इसका एक आंसर होगा, तो ये हमारे पास लेबल होता है। तो फीचर्स होते हैं और फीचर के अगेंस्ट हमारे पास उसका एक लेबल होता है, और यही हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को मैं अभी से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन यही वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है कि हमारे पास डेटा गिवन है और उस डेटा में फीचर्स है और उसका करस्पॉन्डिंग लेबल, हमें क्वेश्चंस भी पता है और उसका आंसर भी पता है। हमने इस डेटा को अपने मॉडल को देना है, अल्गो को देना है, एमएल मॉडल को। वो जब ट्रेन होगा, फिर हम सिर्फ ये फीचर्स देंगे और वी विल आस्क आवर मॉडल टू प्रिडिक्ट द लेबल, और वो मॉडल फिर हमें प्रिडिक्ट करके देगा कि क्या ये जो आपने जो इंफॉर्मेशन फीड हुई है, वो किस लेबल को जनरेट कर रही है, सेटोसा है, वर्सिकुलर है या वर्जिनिका है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वहां पर किसकी बात आ जाती है? वहां पर एक्यूरेसी की बात आ जाती है, ठीक है? तो देन वी टॉक अबाउट एक्यूरेसी। नाउ अ, फिर हमारे पास अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग थोड़ा-सा डिटेल में हो जाता है कि आप जब आपकी प्रैक्टिस होती है, आप थोड़ा आपने कुछ एल्गोरिदम्स पढ़े होते हैं, तो फिर आप अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग को समझ सकते हैं। ब्रीफली ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इन 3 ग्राफ्स को अगर आपको समझ ना भी आए, दैट्स टोटली फाइन, कि हमारे पास ये डेटा है, ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये डेटा पॉइंट्स है, और ये जो यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे, आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल का आउटपुट है, कि वो उसने हमें ये जनरेट करके दिया है। तो हम अब हमारे पास जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, वो ये है, यहाँ पर पड़े हैं, और जो मशीन हमें प्रेडिक्ट कर रही है, वो ये इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मशीन हमें ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये आउटपुट दे रहा है, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रूथ वैल्यू है, जो एक्चुअल आंसर है, वो ये है। तो दोनों सेम नहीं है, तो इसमें एरर है ना, राइट? तो यहाँ पर एरर्स हमारे पास ज़्यादा है। ये बहुत सिंपल फंक्शन है, एक तरह से बहुत सिंपल मॉडल है। तो यहाँ पर अंडर फिटिंग हो रही है। वी आर नॉट फिटिंग इट एग्ज़ैक्टली। फिर यहाँ पर अगर हम इसी फंक्शन को ऐसे कर दें, हमारा फंक्शन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन दिस इज़ नाउ कवरिंग लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है? जो हमारे पास एरर है, वो कम हो जाएगा इसमें। दिस इज़ ऑप्टिमल, ठीक है? और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है। हम ट या जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग जो डेटा हम व्हाइल डेवलपमेंट ऑफ दैट एमएल मॉडल कर रहे हैं, वो सिर्फ कंसर्न्ड है। हमने अभी इसको अनसीन डेटा नहीं दिया है, हमने इसको अभी डिप्लॉय नहीं किया, अभी हमने इसको किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं किया है। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये उसी की बात हो रही है। ओवरफिटिंग ये है कि आप अपने मॉडल को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपने अपने मॉडल से बनाया है कि वो हर एक डेटा पॉइंट को जो है वो कवर कर रहा है। एरर बहुत कम है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेरिएंस और बायस वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अब वेरिएंस, यहाँ पर 22 हमारे पास क्या है, 22 कहते हैं जो एरर होता है हमारे पास ज़्यादा होता है। यहाँ पर फिर वेरिएंस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब ये दिस इज़ ओवरफिटिंग, कि अब ये तो हमारे पास दिखने में तो बहुत हमारा मॉडल बहुत एक्यूरेटली सब डेटा पॉइंट को प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब हमारा मॉडल कह रहा है कि ये वैल्यू है, और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल लेबल है, वो भी यही है, ठीक है? इस तरह इस पॉइंट पर हमारा मॉडल ये पॉइंट
प्रिडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल भी यही है, इस तरह यहाँ पर एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत एक्यूरेट मॉडल लग रहा है, लेकिन जब हम फिर इसको अनसीन डेटा, जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहां पर ओवरफिटिंग होगी कि ये मॉडल फीसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्टिमल फिट को जो है वो प्रेफर करते हैं, और दिस इन द मिडल हमारे पास एक ऑप्टिमल फिट है। 10% 20% आपको समझ आई बात, it's totally fine. Now, am I audible so far? Are you following me? Hello? Yes, sir. Yes, Anybody sir. can confirm? Okay, thank you. So this was regarding the basic concepts of ML, which I have included in my slides, right? Now, if I go to another section of my presentation, कंटेंट जो कि हमारे पास है वो है प्रॉब्लम फ्रेमिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने बहुत ज़रूरी, व्हेन आई रेड अबाउट इट, व्हेन आई स्टडी इट, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको एक प्रोसीजर देता है फॉलो करने के लिए, कि आप जो है अच्छे कंक्लूजन्स पर अराइव करें और कम तंग हो आपको वाइल बीइंग इन एमएल, ठीक है, वाइल बीइंग इन दिस मशीन लर्निंग डोमेन। तो प्रॉब्लम फ्रेमिंग जनरली यही होता है कि आप प्रॉब्लम को एक क्लैरिटी लाते हैं उस प्रॉब्लम में, कि यू आर क्लियर रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स, यू आर क्लियर रिगार्डिंग द गोल्स, इन सिंपलेस्ट टर्म्स। तो मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम फ्रेम हम कैसे करते हैं? तो इफ वी लर्न अबाउट व्हाट प्रॉब्लम फ्रेमिंग इज, तो प्रॉब्लम framing is analyzing a problem to identify its individual elements। हम individual elements को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। वो मैंने क्या बात कही, मैंने वर्ड यूज किया क्लैरिटी। तो क्लैरिटी तब आती है जब आपको पता है अपने प्रॉब्लम का, कि इस प्रॉब्लम के ये एलिमेंट्स है, which helps determine the technical feasibility। आपको पता चल जाता है कि how possible it is technically speaking by using this particular method। प्रोवाइड्स क्लियर गोल्स फॉर सक्सेस, और आपको एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि ये काम होगा तो वी कैन से कि हमने अचीव कर लिया अपना गोल। तो अगेन क्लैरिटी। नाउ बेनिफिट्स के ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एलिमेंट्स को, जो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको, फिर आप गोल डिफाइन कर लेते हैं, तो आपके पास गोल्स होते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी आपके पास आ जाती है कि ये पॉसिबल भी है इस मेथड से या नहीं, और बाइस जो है वो अवॉइड हो जाता है। बाय बाइस इट मींस कि अगर इन एमएल वी आर स्पीकिंग, तो डेटा की बात हमने की, तो डेटा में कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा डेटा तो हमारे पास नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है इन अ नेगेटिव वे सारे डेटा को या हमारे प्रेडिक्शंस को, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, so let's say you are tasked with building a machine learning model to predict which customers are likely to churn। आप churn को समझो, churn का मतलब यह है कि cancel their subscription, कि कौन से ऐसे customers हैं जो कि पॉसिबल है कि वो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करे किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो फॉर अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, नाउ here how the benefits of machine learning problem framing can be applied to this example if we think into that, कि किस तरह हम इसको, मैंने ये churn वाली एग्जांपल दी, इसमें हम आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, डिफाइनिंग क्लियर गोल्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी, अवॉइडिंग बाइस। आपने ये करना ही करना है प्रॉब्लम फ्रेमिंग में, अपने प्रॉब्लम को समझने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए, और वो बिजनेस जो प्रॉब्लम है उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम बनाने के लिए। बिजनेस तो आपका जो स्टेक होल्डर है उस मसले का, वो तो आपको लेमैन और आपको जो है सिंपल वर्ड्स में बता देगा कि ये प्रॉब्लम है। आपने उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है, आपने उसको मशीन लर्निंग के डोमेन में फ्रेम कैसे करना है। तो उसके लिए अगर हम की इस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ चर्न, ये जो चर्निंग की एग्जांपल मैंने दी, कि टेलीकॉम कंपनी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं कि जो कि चर्न करने लगे हैं, जो कि उनका सब्सक्रिप्शन कैंसल करने लगे हैं। तो इसमें की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? डेमोग्राफिक्स हो सकती है, एरिया, एज, जेंडर, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। तो आप प्रॉब्लम को अब समझना स्टार्ट हो गया है कि अच्छा, ये हमें डेटा सेट मिल सकता है, उस डेटा सेट में ये फीचर होने चाहिए, तभी हम कोई एमएल सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो गोल्स क्या होंगे? तो गोल्स मॉडल डेट प्रिडिक्ट
मॉडल वी शुड हैव अ मॉडल जो कि प्रिडिक्ट करे हमारे पास हाई एक्यूरेसी के साथ कि कौन सा कस्टमर इज लाइकली टू चर्न, कौन सा कस्टमर इज गोइंग टू लीव दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो ये बात होगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी और बाइस कैसे हम इसमें करेंगे, तो एमएल इज अ राइट सोल्यूशन फॉर इट। ये जानना हमारे लिए कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमें आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स का पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि डेटा सेट है हमारे पास, डेटा अवेलेबल है, डेटा की क्वालिटी क्या है, उसमें बाइस है कि नहीं है। तो जब हम ये सब करेंगे तो हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी का भी पता चल जाएगा, हमें ये आंसर मिल जाएगा कि whether ML is the right approach to go with for this particular problem, या हमें इसको ट्रेडिशनल तरीके से डील करना चाहिए। और जब हम ML को जब हम ML को ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर गोल्स क्या है हमारे पास, क्या गोल्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो कि हमने अचीव करने ही करने हैं। तो उसकी अगर हम एग्जांपल ले बिफोर दैट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू प्रॉब्लम फ्रेमिंग। दैट इज formal problem framing is the critical beginning for solving an ML problem, as it forces us to better understand both the problem and the data in order to design and build a bridge between them. आपके पास डेटा है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है और डेटा है, आप कैसे इसको लिंक अप करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, और क्या वही वही टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात के कितना पॉसिबल है और कितना हाउ सेंड दिस डिसीजन इज टू build a machine learning model or machine learning solution for this particular problem. तो ये बहुत प्रॉब्लम फ्रेमिंग उसमें हमें हेल्प आउट करती है और बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। So framing a problem in terms of ML is a two-step process generally. Verify that ML is a good approach by doing the following. हम कैसे verify करेंगे कि हाँ ML ही इसका solution है? Understand the problem. Problem को understand करें। Identify a clear use case. अपना use case आपको clear होना चाहिए कि ये ये करना है, ऐसे करना है। अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा को आपको पता होना चाहिए कि डेटा की क्वालिटी क्या है, डेटा है कितना, वॉल्यूम कितना है, एंड ऑल दैट। फ्रेम द प्रॉब्लम इन एमएल टर्म्स बाय डूइंग द फॉलोइंग। जब आपने कंक्लूड कर लिया, यू ऑप्टेड एमएल एज अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो फिर आप क्या करें? डिफाइन द आइडियल आउटकम एंड द मॉडल्स गोल। अब आउटकम क्या आना चाहिए हमारे पास? इन केस ऑफ दैट चर्निंग एग्जांपल, हमारे पास आउटकम आना चाहिए कि पर्सन ए is likely to churn and the accuracy of this prediction is 95%। 95% accuracy के साथ वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि पर्सन इज गोइंग टू चर्न। तो ये वो मॉडल्स गोल हो गया। आइडेंटिफाई द मॉडल्स आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? इंटरफेस रिलेटेड टू दैट आउटपुट, हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, linked it to the goal. Now define success matrix. Success हम कैसे मेजर करेंगे? मैट्रिक्स क्या होगी? evaluation मैट्रिक्स की मैंने बात की, accuracy की बात की, that all comes into this point. तो एग्जांपल हम इसकी क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव एन एप्लीकेशन ऑफ वेदर ऐप, तो उसमें गोल क्या हो सकता है? precipitation in 6 hours increments for geographic region। हमारे पास मेल ऐप है फॉर एग्जांपल, तो स्पैम को डिटेक्ट करना जो उसमें फंक्शन है, तो वो गोल हो सकता है। मैप है तो कैलकुलेट ट्रैवल टाइम गोल हो सकता है। डाइनिंग ऐप है, आइडेंटिफाई कुजीन बाय रेस्टोरेंट्स मेन्यू हो सकती है, एक गोल हो सकता है। तो ऑल दिस हम जो है फिर जो प्रॉब्लम फ्रेमिंग हमें फिर इनेबल करती है कि हम इन गोल को लिस्ट करें ताकि क्लैरिटी हमारे उसमें आए। तो अब आइडियल आउटकम क्या है फॉर एग्जांपल मेल ऐप का? कि डिटेक्ट द स्पैम। मॉडल्स जो आप इसके लिए बनाएंगे उसका आउटकम, उसका गोल क्या होगा? एक आउटकम है कि डिटेक्ट स्पैम हो गया। अब मॉडल का गोल क्या होगा? प्रिडिक्ट वेदर और नॉट एन ईमेल इज स्पैम, और उसकी एक्यूरेसी क्या है? वो मॉडल इज परफॉर्मिंग एक्यूरेटली और नॉट, कितना एक्यूरेट वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह हम एमएल प्रॉब्लम को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। Now, quick knowledge check. Anybody can unmute and can answer कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Problem framing helps diagnose problems with existing ML models and uncovers issues with data. And second is problem framing ensures that an ML approach is a good solution to the problem before beginning to work with data and train a model.
So who is going to tell me which one is the right statement? Anybody can unmute. Uh, second one is second one is the right, and G, and why the second one is the right statement? Pick your answer with the reason, right? Tell me a short reason. The second one is right because. Hello. If problem framing is about ensuring that an ML approach is a good solution to the problem before beginning to work with data and train a model, is the right statement, because in problem framing, we refer to the procedure and the methodologies that enable us to know कि क्या हमें ML के साथ जाना भी चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए कि नहीं, हेलो और वो स्टेप्स। जी जी सॉरी चलें ठीक है आप बता रहे हैं बस ठीक है मैं यू अपने कैन, यू वो कैन व्यू ऐड। ये जी जी, प्लीज प्लीज सो ऐड करें। जी तो मैं मेरे ख्याल से तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है प्रॉब्लम फ्रेमिंग हेल्प डायग्नोज प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड अनकवर इश्यूज विद डाटा। ये इसलिए जी क्योंकि बिफोर हम किसी अपने जो है ना किसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम तोड़ते हैं, उस चीज को फिर एनालाइज करते हैं और फिर हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो जी मेरे ख्याल से जिस तरह से ये जो डेफिनेशन है ये जो है ना ये सही है फिर कि हम पहले अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है, और उसके उसके इश्यूज अनकवर करते हैं और उसके बाद फिर अपने मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ जाते हैं। कटिंग यू ऑफ हियर, आपने कहा कि हम अपने प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है एग्जिस्टिंग जी जी एमएल मॉडल्स। यहाँ पर बात प्रॉब्लम की नहीं हो रही है, व्हाट हम्म प्रॉब्लम वी हैव इन हैंड। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग हेल्प्स डायग्नोज प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग एमएल मॉडल्स। यहाँ पर मॉडल्स की हम्म बात कर रहे हैं ये, कि हम मॉडल्स को हम्म जो है देखते हैं, उसको उसमें इश्यूज क्या है, डेटा के साथ इसको इश्यूज क्या है। यहाँ पर इन्होंने जो हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम की बात इन्होंने की ही नहीं। तो जो आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम का मेंशन होना जरूरी है कि हम जी जी प्रॉब्लम को जो है वो स्टडी करेंगे। तो आपकी डेफिनेशन इस सेकंड वाले स्टेटमेंट पर सही बैठ रही है कि प्रॉब्लम फ्रेमिंग इंश्योर्स दैट एमएल अप्रोच इज अ गुड सॉल्यूशन। जब आप उस हम्म प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, उसको समझते हैं, उसका डेटा असेस करते हैं, क्वालिटी कैसी है, वॉल्यूम कितना है, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, तो वही हमें आंसर करता है कि क्या एमएल अप्रोच इज द राइट way to go or not. ठीक ठीक Say, ओके okay, so this was regarding ML problem framing. Now, if we talk about types of ML, तो types of ML पर हम हमारे जो 2 दिन है आगे, तो we are going to be we are going deeper into that in tomorrow session and in the 19th April session. सुपरवाइज लर्निंग होती है हमारे पास, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सेमी सुपरवाइज कुड बी अंडर दिस, सम माइट आर्ग्यू इस तरह। हमारे पास डीप लर्निंग इज अंडर मशीन लर्निंग, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अंडर दिस। लेकिन अगेन, what is the objective of the boot camp is to enable the beginners to start into ML. तो यहाँ पर ML में हमने 3 ये कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप को जो मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लेबल की बात की, तो सुपरवाइज लर्निंग के नीचे लिखा है कि मॉडल्स ट्रेनिंग विद लेबल डेटा। जब जो मैंने आपको जुपिटर नोटबुक में दिखाया कि हमारे पास फीचर्स भी थे और उसका लेबल भी था, तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो गई कि हमारे पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। फिर उसके 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी या रिग्रेशन मेनली, ठीक है। फिर अनसुपरवाइज में मसला ये होता है कि वो फीचर्स हमारे पास हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन उसका लेबल नहीं है कि ये क्या है। तो वहां पर हमारे पास फिर वन ऑफ द प्रॉब्लम और वन ऑफ द एरिया जो वहां पर है, तो वो क्लस्टरिंग का आ जाता है कि क्लस्टरिंग होती है। फिर हम सुपरवाइज लर्निंग ऐसे एल्गो होते हैं जो कि हमें क्लस्टर बना के दे देता है कि अच्छा, वी डू नॉट हैव द लेबल्स कि ये क्या है, बट ग्रुप कर सकता है वो अल्गो
कि ये सिमिलर है, ये ग्रुप सिमिलर है और ये ग्रुप सिमिलर है, और आउटलायर्स और वो सब कॉन्सेप्ट इसमें फिर आ सकता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास क्या होता है कि एजेंट होता है और एजेंट अपने एनवायरनमेंट से खुद लर्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास कुछ नहीं। यहाँ पर भी अल्गो एम्प्लॉयड होती है, और वो अल्गो के बेस पर एक रिवार्ड बेस एल्गोरिदम होता है, जो कि उसमें होता है एक डिलेड फीडबैक मिल रही होती है एजेंट को कि उसने ये काम सही किया या गलत किया। तो उसके बेस पर फिर वो अपने लिए जो है वो नेक्स्ट एक्शन को परफॉर्म करने में उस फीडबैक को वो इनकॉर्पोरेट करता है, और दिस वे द एजेंट लर्न। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये होता है कि मॉडल टेक एक्शन इन द एनवायरनमेंट, देन रिसीव स्टेट अपडेट्स एंड फीडबैक्स। तो वो फीडबैक के बेस पर वो फिर कर सकता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अलग से फील्ड है, अनसुपरवाइज सब अलग अलग एरियाज है अंडर मशीन लर्निंग, और लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर इन ईच एरिया एंड लॉट ऑफ लर्निंग इज देयर। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स है एमएल की। एंड आफ्टर दिस इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल विजुलाइज हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म में है कि हमारे पास एक बिजनेस प्रॉब्लम होता है एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टेप होती है। अगर हम वो चर्निंग वाली एग्जांपल को ले, तो जो टेलीकॉम कंपनी या जो भी कंपनी होगी, हम पहले उसके प्रॉब्लम को सुनेंगे, और उसके पास जो डेटा है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम प्लान करेंगे। प्लान क्या है? प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। जब प्रॉब्लम फ्रेमिंग हो गई है एंड यू हैव कंक्लूडेड कि ओके आई एम गोइंग टू यूज एंड डेवलप एमएल सॉल्यूशन फॉर इट, तो फिर बात कहाँ चली जाती है? डेटा प्रिपरेशन। तो आपने फिर अब डेटा के साथ आपका काम स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर वो जो मैंने डेटा साइंस वर्सेस एमएल वाला पार्ट रखा है ना, तो वो बस मैं सिर्फ इसी और लैब को कन्वे करना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। डेटा प्रिपरेशन होती है, ठीक है। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप डेटा लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को डील करते हैं, आउटलायर्स को डील करते हैं, इनकंसिस्टेंट फीचर्स को डील करते हैं, कौन सा फीचर सही ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा कम रेलेवेंट है। आप अपने डेटा को रीशेप करते हैं, एंड ऑल दोज हैपेंड इन डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन हो जाती है, फिर आप मॉडल इंजीनियरिंग जो फिटिंग की हमने बात की थी ना, वो यहाँ पर हो जाती है। फिर जो हमने एक्यूरेसी की बात की, तो वो मॉडल इवैल्यूएशन में हो जाती है। जब हमारे पास एक ऐसा चर्न मॉडल बिल्ड हो गया है जो कि फॉर एग्जांपल 95+% एक्यूरेसी के साथ ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि अ पर्सन इज लाइकली टू चर्न और नॉट, तो हम फिर उसको डिप्लॉय कर लेते हैं, और वो फिर ऑपरेशनल हो जाता है। और ऑपरेशनल के बाद मीठा एनीबॉडी तो आस्किंग एनी क्वेश्चन? वो तो नजर नहीं आ रहा, इफ दूर नॉट दूर था। इफ चलेगी नॉट थोड़ी सी काइंडली यार। अरे ना म्यूट योर माइक। थोड़ी। Kindly keep your mic mute. तो तो यहाँ पर हमारे पास जब ऑपरेशनल हो जाता है मॉडल, तो फिर उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। उसमें कोई इशू आता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो अकॉर्डिंगली फिर प्लानिंग में हमारे पास पेस फिर आ जाता है कि हमने फिर अपने अगर कोई रिक्वायरमेंट एड अप हो गई है, कोई चेंज आ गया है, तो हमने अब फिर से प्रॉब्लम को फ्रेम करना है। और जब फ्रेमिंग हम कर लेते हैं, तो फिर वो डेटा प्रिपरेशन और मॉडल इंजीनियरिंग और साइकिल से इस तरह जाएगा। नाउ एमएल वर्सेस डेटा साइंस मैंने सिर्फ इसी के लिए किया था कि यहाँ पर आप देखें तो ये डेटा प्रिपरेशन, इवन मॉडल इंजीनियरिंग, ये सब डेटा साइंस के उसमें भी आता है व्हेन यू आर डीलिंग विद डेटा साइंस। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है। आप देखें कि मशीन लर्निंग है और डेटा साइंस की जो एरिया है ना, तो इधर कुछ पार्ट जो है वो क्या है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है। जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम करते हैं, जो मैंने क्लीनिंग की बात की, मिसिंग वैल्यूज को डील करना, आउटलायर्स को डील करना, और डायमेंशंस को चेंज करना, अपने डेटा को इस फॉर्म में लाना कि हम उसको अच्छी तरह उससे मॉडल ट्रेन कर सके। वो हम वी कैन से अंडरस्टैंडिंग द डेटा, इसको अच्छी तरह उससे इंसाइट्स निकालना, उसको विजुअलाइज करना, टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स, उस पर कम्युनिकेशन करना, उसको इस तरह बनाना कि जो नॉन टेक्निकल है उसको भी समझ आए। तो दीज ऑल कुड come under EDA. EDA is part of data science as well as we can fit it into machine learning. तो एक इंटरसेक्शन मौजूद है, और इसको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इस पर अलग सेशन हो सकता है, और इस पर अलग आप सर्च कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो
ज़्यादा कर सकते हैं कि how these are related, what are the similarities, what are the dissimilarities and all. तो ये था हमारे पास वो कि क्या वो इंटरसेक्शन क्या है दोनों का, डेटा साइंस का और मशीन लर्निंग का. कैरियर पाथ्स इन एमएल बहुत ज़्यादा है, out of which I have listed these 20s. ML engineer, data scientist, data engineer, all comes under, if you are pursuing ML, you can be eligible for all these for all these roles. Data analyst, AI research scientist, DL engineer, NLP engineer, all coming to ML ops engineer. ठीक है. तो अब इसमें हर एक बार हम डिटेल में बात नहीं कर सकते. Some from the list are ML engineer जो है, तो उसका काम यूजुअली होता है कि turning data into value with machine learning. Skills क्या required होनी चाहिए? Strong understanding of machine learning algo and their implementation, proficiency in programming languages Python, Java, C++, experience with machine learning frameworks such as TensorFlow, Keras, and PyTorch, knowledge of cloud computing platform like AWS, Azure, or Google Cloud Computing Platform, strong problem solving analytical skills. Salary आप खुद अपडेटेड मैंने आई होप कि अपडेटेड है बट कुड बी मिस्टेकन. तो सैलरी आप देख सकते हैं कि क्या है पर ईयर पर एनम से. ठीक है. तो ऐसे फिर हम मैंने स्लाइड ऐड की है डेटा साइंटिस्ट के लिए, उसकी भी इसी तरह स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है और उसकी सैलरी क्या है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. फिर हमारे पास डेटा इंजीनियर की अलग मैंने लिस्ट की है, बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की अलग से मैंने लिस्ट की है, ML Ops इंजीनियर की अलग की है. एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशंस कंटेंट. ठीक है. ये सेशन कंटेंट का जो पार्ट था वो हमारा कवर हो गया. लेकिन मैंने स्टार्ट में बात की, जो हमारा लास्ट थिंग है वो है टास्क. आई एम फीलिंग quite a headache due to मैंने जो start mention किया regarding my health. Anyway, we have come to the end of the session, and please take a snap from the task slide. I can later on share this in the WhatsApp group as well. और उसके अलावा एक फीडबैक फॉर्म आपको फिल करनी होगी जिसमें आप अभी भी कोई एक दो तीन क्वेश्चन आई वुड entertain if there is. लेकिन अक्सर होता है बीइंग अ स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई डू रियलाइज कि होता इस तरह है कि हमें अक्सर उस टाइम पर हमारे जहन में कोई क्वेश्चन नहीं होता या कुछ पूछने के लिए इंटरेक्शन करने के लिए नहीं होता, लेकिन बाद में आ जाता है. तो उस फीडबैक फॉर्म में फील्ड होगा क्वेश्चन के लिए भी. तो आप रिलेटेड टू ML, रिलेटेड टू दिस बूट कैंप, रिलेटेड टू दिस सेशन, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो कि फिर हम इंटरटेन करेंगे. और टास्क हमारा ये रहा कि टास्क है कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस और प्रोसेस डेटा फॉर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन को क्या किया है, एक लाइन को मैंने उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज किया है, और उसकी वजह यह है कि अगर ये ना भी हो तो ठीक है फॉर नाउ. Choose a real world problem that can be solved using machine learning problem. If you're coming short on ideas, what to think, what to choose, इसको भी आप हटा सकते हैं. सेकंड से आप स्टार्ट कर ले. Find a relevant data set to solve the problem. यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करके ऐसे कर ले कि कोई भी डेटा सेट उठाए. पॉइंट सेकंड जो है, पॉइंट 3 है pre-process and clean the data so that it's ready for modeling. This may include tasks such as removing missing values, dealing with outliers, converting categorical values to numerical values, and scaling the data. तो इन सब को आपने अलग अलग से खुद स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, डेटा सेट उठाना है केगल से या पर यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी या किसी लाइब्रेरी से पाइथन की डेटा सेट को उठा. लाइब्रेरी पाइथन की लाइब्रेरी से उठाओ तो वो तो पहले से क्लीन होगा यूजुअली, राइट. तो आपने एक ऐसा डेटा सेट उठाना है कि जिसमें ये काम करने के हो, उसमें मिसिंग वैल्यूज हो, उसमें आउटलायर्स क्या होता है आप खुद देखें, वो हो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आप खुद पढ़ें. हम इसको स्टडी करेंगे इन कमिंग सेशंस. और न्यूमेरिकल वैल्यूज में से कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्केलिंग एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जो भी है वो आप उसको लिस्ट डाउन करें और उसको खुद अंडरस्टैंड करके पढ़े. डॉक्यूमेंट योर डेटा pre-processing steps in a Jupyter notebook or any other tool of your choice and provide a brief explanation of why each step was necessary. आपने documentation करनी है, फिर अपने उस जो भी आपने missing values को deal किया, outliers को deal किया and all, और save the pre-processed data in a suitable format. CSV और JSON फाइल में आप उसको स्टोर करें, CSV Excel फाइल में.
इवन अगर आप शेयर ना भी करें, जुपिटर में कर रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक could work that can be used for modeling in the next steps for machine learning life cycle. तो यहाँ पर आप मशीन लर्निंग में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं वापस इसमें आऊं लाइफ साइकिल में, तो आप ये कर रहे हैं, ये वाला स्टेप है डेटा प्रिपरेशन। तो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम फ्रेमिंग भी मैंने हटा दी है, वो अपने लिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, उसको पढ़े, फिर अगर आप इसको भी ज्यादा अभी रिवाइज करेंगे, इसको समझेंगे, इस पर और सर्च करेंगे, तो आपको जो है वो और भी सीखने को मिलेगा, और फिर आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी अप्रोच कर सकते हैं, और फिर उसके लिए कोई suitable data set भी आपको मिल सकता है। तो since the objective was to let you start into ML, so this is your opportunity to start into ML. If you haven't written a single code in Python, worry not. If you are good in Python, good. If you are not, doesn't matter. यही आपकी opportunity होती है आपके लिए कि आप एक चीज को किसी वजह से सीखें, तो this is that opportunity for you. और मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं स्किल एक्विजिशन पर बात करूंगा, तो स्किल एक्विजिशन ये है कि कोई भी हमारे पास जो स्किल को एक्वायर करने का प्रोसेस होता है, तो वो लीनियर नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। तो एक फ्रस्ट्रेशन बैरियर हमारे पास होता है फॉर अ टाइम, एक टाइम फ्रेम में आपको वो बोरिंग भी लगेगा, आपको वो तंग भी करेगा, लेकिन हर काम का यही सीन है। हर प्रोफेशन आप उठा ले, दुनिया की कोई भी प्रोफेशन उठा ले, और आप सिर्फ उसको इस वजह से छोड़ेंगे, उस स्किल सेट को इस वजह से उस पर गिव अप करेंगे कि वो आपको तंग कर रही है या आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर तो कोई भी ऐसा स्किल आपको नहीं मिल सकता जो कि आप कहें कि इसमें वो नहीं होगा। तो आपने एक को चूज करके फिर उसके लिए दिल बड़ा करके आपने एक ये समझ लेना है कि ओके, दिस इज द फ्रस्ट्रेशन एंड आई विल हैव टू डील विद इट। और फिर एक पॉइंट आता है कि फिर उसके बाद वो कन्वीनियंस आना स्टार्ट हो जाती है, फिर भी टाइम टू टाइम इनकन्वीनियंस आती है, लेकिन वो फिर कम होती है, आप उसको डील कर सकते होते हैं। तो दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस। आई एम स्टिल लर्निंग ML एंड AI, और सिंस आई डिड मेंशन कि आई एम एन 8th सेमेस्टर स्टूडेंट, मैं अपना FYP कर रहा हूँ, और इसी तरह की या तो कोई बूट कैंप है या FYP में अब हमारे पास डीप लर्निंग को हमने देखना ही देखना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है जो कि आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। नाउ दिस बूट कैम्प कुड पोज एज एन अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल, कि आप इस बूट कैम्प को लेके, ये बहुत ही जो यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के होंगे तो उन्होंने ये काफी दफा किया होगा ये काम, जो जिन्होंने नहीं किया तो दे कैन टेक इट एज अ स्टार्ट फॉर देम। तो दिस इज ऑल। और कल के सेशन के लिए हमारे पास, if I look into the tomorrow session agenda, so we have introduction to supervised learning, regression problem, classification problem. हम थोड़ी बहुत exploratory data analysis पे बात करेंगे, scikit-learn और gradient को टच करेंगे, regression hands on होगा और classification hands on होगा, और कल का फिर अलग टास्क होगा। टास्क की डेडलाइन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टेक इट इजी। रमजान है और ईद है, फिर ईद के बाद ही इसकी सबमिशन होगी ऑब्वियसली, लेकिन करना ही करना है अपने लिए। और उसके बाद अगर आपको वो जो मैंने कंडीशन रखी है, एक कंडीशन है कि हम फीडबैक फॉर्म फिल करना और उसके साथ साथ ये टास्क सबमिट करना इम्पोर्टेंट होगा। मैंने फिगर्स, गूगल इमेजेस, क्रेडिट्स में मैंने मेंशन किया, डेटा कैंप वो जो लाइफ साइकिल का था उससे लिया, कंटेंट रिसोर्स गूगल, ये जो प्रॉब्लम फ्रेमिंग है ये पूरा गूगल का रिसोर्स है। चैट जीपीटी, द राइट यूज ऑफ चैट जीपीटी, राइट, और आइकन स्लेट आइकन से और टेम्पलेट कैनवा से उठाकर, लेकिन इस कंटेंट को बनाने में अगर आप सोचे कि 8 आवर्स लगे हैं तो आप कम बता रहे हैं, अगर आप सोचे कि 10 आवर्स लगे तो भी आप कम बता रहे होंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन सिंस इन द स्टार्ट आई हैव मेंशन्ड कि लॉट ऑफ पीपल हैज गॉन इनटू इट, और आप उस पर्सपेक्टिव से लेकर इसको आप सीरियस ले और आप अटेंटिव हो के इसको ले, तो अगर तो आपको लग रहा है कि इट्स नॉट एडिंग अप टू एनीथिंग टू योर नॉलेज, तो फिर तो आपका यहाँ पर फायदा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टू द बिगिनर्स, अगर आपको लगता है कि यू हैव लर्न समथिंग एंड यू एक्सपेक्ट लर्निंग समथिंग, तो आई encourage you to attend the second and third day as well. और here we are at the end. I can take a couple of questions अगर है तो वो मैं ले लूंगा। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन आप फिर फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। Important, most important is कि I request to kindly follow Zaheen.IT socials.
I will share the links again in the group. Do it because it is a new community-oriented startup, as you all. If you do not know, मैंने इसकी launch ceremony अभी नहीं हुई और launch ceremony से पहले ही Unfolded bootcamp में इसकी collaboration थी और अभी ये second इसका bootcamp आया. तो launch ceremony से पहले ही community में 2 bootcamp ये कर चुका होगा. तो इसको जरूर follow करें. And if we can make such effort to pull off such bootcamp, that too for free. So I guess requesting you to follow it shouldn't be the case, right? Rather, you yourself should follow and also share it to and make people follow it, because that way we can move forward, and that way this will enable us to design such more initiatives, right? So thank you for joining. Or if there's any question, you can unmute and ask. And if there's any interaction, anything you want to add, you can go ahead. Do we have any question? Okay. No, thank Chief. you. No. Ji, you're welcome, Fateh. So we are 20 participants over here, and enough for me. क्योंकि since I added कि वही लोग अगर boot camp लेंगे तो objective meet करना है. That is to, as I am again and again stating, speaking, that is to enable you to start into ML. We are all starting into ML. I myself am a student, एजुकेटर प्लस स्टूडेंट. तो आप एट अ टाइम कर सकते हैं कि आप एक्टिवली सीख भी रहे हैं और आप एक्टिवली उसको फिर आप आगे सिखा भी सकते हैं. So I guess that's all for now. If हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं MSCS का स्टूडेंट हूँ सर. जी तो इरशाद. काइंडली ड्यूरिंग लेक्चर सर आप ये कमेंट सेशन अलाउ कर दें सर हमें. अच्छा, आई विल लुक इनटू इट. मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि मेरा आज ये कैंसिल करने का वो इरादा था. मैसेज भी टाइप हो चुका था, लेकिन देन आई सेड कि दिस इज गोइंग टू कन्वे नॉट अ गुड इम्प्रेशन. नहीं सर, तो ठीक फिर था. वो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. तो वी विल लुक इनटू इट. और कमेंट सेक्शन हम ऑन करेंगे और आप अनम्यूट करके भी डिस्टर्ब और इंटरप्ट कर सकते हैं. ऐसी कोई नहीं बात सर, नहीं है. यू कैन ड्यूरिंग अनम्यूट. लेक्चर पीरियड डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से इससे बेहतर है कि आप कमेंट सेशन अलाउ करें तो हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर. ठीक है इरशाद, आई विल लुक इनटू इट. और उसके अलावा फीडबैक फॉर्म भी शेयर होगा, तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके सर, लेकिन अगर ड्यूरिंग लेक्चर हो तो बहुत ज़्यादा वो भी हेल्पफुल आई रहेगा विल सर. लुक इनटू दैट के एग्जैक्टली के ऑन द स्पॉट वहां पर जो क्वेश्चन होगा तो वो फिर भूल भी सकते हैं ना. तो आई गेट इट. थैंक यू इरशाद फॉर रेजिंग दिस थैंक यू. पॉइंट, थैंक यू. and thank you for joining. Okay, so if we do not have any further question, then we can conclude our session. Thank you, Zulkarnain. I should switch.